Hello and good morning. Welcome to the Raftar Current Affairs series, and we shall begin now. Okay, so the first news is about the linking of Ken Betwa river. Okay, so कुछ नहीं, बस सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ है. Ken is in MP. Okay, and though both of them originate from MP only, and Betwa is in UP. ठीक है, surplus water is in Ken. ठीक है, and we have to provide link the projects, and we have to move the water from Keen to Betwa. Okay, and which region it will cater to? That is Bundelkhand region in UP. Okay, our friends from Uttar Pradesh who are from Bundelkhand region would know the problem, that there is a drought problem out there in that particular region, and due to that this particular reason the region is not able to progress and develop. ओके, सो केन का जो सरप्लस पानी उठा के जो है बेतवा में डाल देंगे. बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम एमपी ओनली. ठीक है, केन, के फॉर केन, के फॉर कैमूर रेंज. ठीक है, याद रखना. ओके, कैमूर रेंज से निकलती है के फॉर केन, के फॉर कैमूर रेंज. तो केन ओरिजिनेट फ्रॉम कैमूर रेंज एंड बेतवा फ्रॉम विंध्या रेंज. ओके, दे बोथ आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना एंड केन पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व. ओके, ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आपको जो है हमेशा याद रखनी चाहिए. ठीक है, तो सेकंड इज दैट दी सेंटर cuts agresses. You know there is something called as surcharge and there is something called as cess. Okay, don't worry, we'll discuss it in our upcoming economic module. Okay, कुछ नहीं है, फैक्ट्स पढ़ लेते हैं. ऑयल जो है इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल. इन फैक्ट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, and out of that 70% consists of palm oil. Okay, people from North India will cannot relate with it, but palm oil is the consists the major component in vegetable oil import. So it is world's most consumed vegetable oil. It is used extensively in the production of detergent, plastics, cosmetics and biofuels. Okay, now you may think that these are not important, but जब आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई. आपको लगेगा पाम ऑयल में यार पाम ऑयल और प्लास्टिक का क्या लेना देना. ठीक है, डिटर्जेंट का क्या लेना देना. बट सी, but it is used extensively in the production of detergents, plastics, cosmetics and biofuels. Okay, top consumers of commodity are India, China, European Union. Okay, so well, so oil sheets, now there were different revolutions for different kind of things. Like for milk, forgive me for writing my writing, I'm still able to not able to write it clearly. So milk was white revolution. Okay, ऑयल शीट्स के लिए क्या थी? येलो. ओके, ऑयल शीट्स के लिए येलो थी. नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स क्विकली व्हाट वाज पिंक एंड ब्लू revolution about. Okay, now for means perspective, there is something called as national edible oil palm mission. Okay, कुछ नहीं है, वही अपना पुराना सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर. ठीक है, तो हमें जो आत्मनिर्भर बनना है ऑयल्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में, उसके लिए ये इनफैक्ट पाम ऑयल में उसके लिए ये प्रोग्राम चला गया था. नाउ इंडिया एक्सटेंड जीनोम सीक्वेंसिंग, facilities to neighbor company. Our concern is only what are genome and what is genome sequencing. Okay, we have to understand it. एक छोटा सा पॉइंट, एक इंसा कॉग करके एक देयर इज अ व्हाट वुड आई कॉल इट एजेंसी है which works under the Ministry of Health and Family Welfare. Always when you have to remember the ministries, how will you remember? You remember like this, NFW, Ministry of Health and Family. नहीं तो आप लोग भूल जाओगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग. पहले जीनोम क्या होता है? जीनोम क्या होता है कि कंप्लीट सेट ऑफ आरएनए डीएनए जो होता है ना, जीन्स को मिला के. भाई देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में. ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स में क्या होंगे? जीन्स होते हैं. ठीक है, जीन्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है.
ठीक है, जीन्स के अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, ए टी जी सी टी यू, यू नहीं होता, याद रखना, ए टी जी सी जी सी टी ऐसे करके जो होता है ये एक पेयर होता है, एक लंबा सीक्वेंस होता है, इसे कहते हैं जीन सीक्वेंस। और जब टोटल जीन्स के सारे सीक्वेंस हम निकाल लेते हैं ना, तो उसे कहते हैं जीनोम सीक्वेंस, ठीक है। क्विकली देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग इट्स जीन्स, ओके। अब डीएनए आरएनए क्या होता है, ये क्या होता है, ये एटीजी से क्या होता है, एटीजीसी का पेयर होता है डीएनए में। ये क्या होता है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ओके। वो अभी हमने साइटोसिन आपको पता है किससे रिलेटेड है, अभी जब सबको कोविड हुआ था तो आपने साइटोसिन स्टॉर्म पढ़ी होगी, ठीक है, तो वो भी एक साइटोसिन होता है, साइटोसिन स्टॉर्म, ठीक है। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में बस टी की जगह यू आ जाता है, यू फॉर यूरासिल। एंड ये एटीजीसी एयूजीसी क्या होते हैं, ये 4 टाइप्स ऑफ बेसेस होते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, ओके। ये बेसेस होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ बेसिस होते हैं। तो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, डीएनए में ए टी जी सी, आरएनए में ए यू जी सी, ओके। ये जीनोम सीक्वेंसिंग को इसकी एप्लीकेशन क्या है, पूछ लेता है कभी कभार, टू अंडरस्टैंड इन्फेक्शियस एंड रेयर डिजीजेस, टू आइडेंटिफाई म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है, ठीक है, लॉन्ग एवोल्यूशनरी प्रोसेस में बड़ा काम की चीज़ होती है म्यूटेशन, भाई म्यूटेट कर गया, ठीक है। एंड एवोल्यूशन, अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि कोविड का क्या हो गया, वायरस का म्यूटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, टू आइडेंटिफाई म्यूटेशन एंड एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग, पीपल हु हैव एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल और बायोटेक एज एन ऑप्शनल विल इजीली अंडरस्टैंड इट, but don't worry if you don't have that optional, it is very simple. Revealing population level predisposition of diseases, भाई कुछ population में predisposition होता है diseases का लेके, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल एरियाज में एंटीडीज पाए जाते हैं, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, ठीक है। नाउ शॉर्ट न्यूज़ में कुछ नहीं, लासा फीवर, ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस फाउंड इन वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, स्प्रेड बाय रैट्स, ठीक है, रिवाविरिन एंटीवायरल ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट। 3 चीज़ें याद रखो बस, देखो वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है, रैट्स इसके मेन वो हैं, रैट से आ जाता है, और आर फॉर रेड्स एस, और आर फॉर रिबाविरिन एंटीवायरल ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। समटाइम्स यू माइट बी आस्क्ड हवान सिंड्रोम कुछ नहीं है, क्या हुआ था कि बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्लोमेट्स एंड इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को क्या हो गया था, मतलब एक टाइप की अजीब सी बीमारी टाइप हो गई थी जिसका आज तक पता नहीं चला है, ठीक है। तो उससे क्या एक वर्ड निकल के आया था, माइक्रोवेव वेपन्स। नाउ व्हाट आर माइक्रोवेव वेपन्स, ठीक है, दे आर सपोज टू बी अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स विच एम हाईली फोकस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोनिक लेजर और माइक्रोवेव एट अ टारगेट, ठीक है। तो माइक्रोवेव वेपन्स, ठीक है, बस जस्ट पासिंग रेफरेंस को आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपके दूर में बस मतलब पढ़ा होना चाहिए कि हाँ माइक्रोवेव वेपन्स भी कुछ होते हैं, पूछे ना पूछे अलग बात है। नाउ समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कुछ नहीं है, इसका काम है पीएमजे, दैट इज़ आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट करना। कुछ नहीं है, ये क्या कर रहे हैं कि ये सोशल इकोनॉमिक कॉन्सेंसस और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो दोनों में डेटा है उसे इंटीग्रेट करके जो उसके बेनिफिशियरी हैं उसको अपने डाटा से मैच करके बेनिफिशियरी की लिस्ट बना रहे हैं सही तरीके से। तो ये तो न्यूज़ है, ठीक है। SECC स्टैंड्स फॉर सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। और जल्दी से उसमें बता दो कि इसमें क्या 3:2:1 की जब हम बात करते हैं तो 3 रुपये में क्या मिलता है, 2 रुपये में क्या मिलता है और 1 रुपये में क्या मिलता है NFSA में, ठीक है। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, डोंट वरी, ओके। नाउ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किसके अंडर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है, ठीक है। इसका काम मैंने आपको बता दिया कि आयुष्मान भारत जो योजना है भारत की, या द स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत विच वॉज रीनेम्ड लेटर एज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, जन आरोग्य योजना, ठीक है, उसका काम को इम्प्लीमेंटेशन करना भी है। नाउ दिस समथिंग कॉल्ड एज नेशनल हेल्थ स्टैक ऑल्सो, ओके, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, डोंट कंफ्यूज इट विद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। NFSA आपको बताइए, लीगल राइट टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू एलिजिबल हाउस होल्ड टू रिसीव फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज प्राइस, ओके। NFSA के बेनिफिशियरी कौन कौन है, एलिजिबल हाउस होल्ड कंप्राइज 2 कैटेगरीज,
priority household and families covered under Antyodaya Anna Yojana. Don't worry about schemes, we will come up with a proper module of schemes and we shall discuss it there. ठीक है. Now for the point of view of art and culture, that there is something called as मेधाराम जात्रा. ठीक है. अभी जात्रा जहाँ भी दिखेगा ना, कोई एक टाइप का फेस्टिवल ही होगा. इनफैक्ट इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल फेयर कम फेस्टिवल after Kumbh Mela. Okay, also it is celebrated by second largest tribal community बता दो फर्स्ट कमेंट बॉक्स में. ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया. तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है? कोयाज हैं. कोयाज कहाँ पाई जाएंगी? तेलंगाना में. ठीक है, ये भी कभी कभार पता है आपको याद होना चाहिए कि कौन सी मेन ट्राइब कहाँ है. अगर मैं आपसे पूछूं कि थारूज कहाँ पाए जाते हैं, तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स वेयर आर थारूज, विच स्टेट दे बिलोंग टू. ठीक है, कोया तेलंगाना में पाए जाते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस फेस्टिवल इज दैट देयर इज नो वैदिक और ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस. ठीक है, नो वैदिक और ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस. एक जपना वागू रिवर है वहाँ पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, उसको वर्शिप किया जाता है. नाउ person in use was are very beloved Sarojini Naidu ji. Now each point in this becomes very important because when when a question of a particular person comes, तो उसमें उनकी बुक्स भी पूछ लेते हैं, उनकी एसोसिएशंस भी पूछ लेते हैं. ठीक है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए. तो हम क्विकली पढ़ लेंगे इसको. शी वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला. ठीक है, what were her role in independence movement? In 1917 she helped in the formation of World Indian Association, that is WIA, Women's Indian Association बनाया था. और एक और एसोसिएशन दूसरा था, फाउंडेड ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस इन 1927. ओके, तो दो चीज़ें हैं, वुमेंस इंडियन एसोसिएशन प्लस ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस. ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड INC सेशन एट 2025, ये याद रखना. ठीक है, who was the first woman? Tell me in the comment box. Who was the first woman? ठीक है, she was the first Indian woman to preside the Indian National Congress conference in 1925. Okay, now Sarojini Naidu took part in Sword March with Mahatma Gandhi and was arrested by British authorities. Very important, not very important, but from the point of view of public service commissions, it becomes important. Literature, she wrote a play called माहिर मुनीर. ठीक है, इन पर्शियन, एंड अ पोएम द ब्रोकन विंग शी विच इज डेडिकेटेड टू मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी ब्रोकन विंग विच इज डेडिकेटेड टू मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, दैट वाज द काइंड ऑफ प्री इंडिपेंडेंस में, दैट वाज द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन वी ऑल हैड. पोस्ट इंडिपेंडेंट में शी बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. Okay, so that will be all for today. Thank you very much. I hope you all are fine and I shall see you tomorrow. Thank you very much.